اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پوری قوم کو عید الاضحیٰ پر میری طرف سے مبارکباد۔ عید یقیناً خوشی کا تہوار ہے اور یہ ایک دینی تہوار ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم عید منا رہے ہیں اپنے بچوں کے ساتھ، آج بھی ہزاروں لاکھوں خاندان اس ملک کے طول و عرض میں ایسے ہیں جن کے پاس آج اپنے بچوں کو عید کے نئے کپڑے سلوانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ میٹھی عید ہوتی ہے، سوئیاں کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوئے ہیں، اور عید کی تحفے تو دور کی بات ہے، جب شام کو مزدور گھروں میں لوٹتے ہیں تو بچے ان کا کپڑے نوچتے ہیں اپنے باپ کے کہ ہمیں کھانا کھلائیں۔ تو یہ بڑا مشکل دور ہے، لیکن سیاست تو دور کی بات ہے، یہ احساس کی بات ہے، اور احساس جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے آتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم سب کو مل کر ان محرومیوں کا، جن کا میں نے ذکر کیا ہے، اس کا احساس کرنا ہے، اور نہ صرف احساس کرنا ہے بلکہ کوشش کرنی ہے سب نے مل کر، تمام سیاسی جماعتوں نے، پوری قوم نے، کہ اس گرداب میں سے ملک نکلے۔ آج میں کوئی سیاسی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ آج سیاست سے زیادہ قوم کو، ریاست کو، معیشت کو سنبھالا دینے کی ضرورت ہے۔ اگر معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ ایٹمی قوت ہے، اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم سے 22 کروڑ لوگ یہاں بستے ہیں، اگر انشاءاللہ تعالیٰ اس ملک کی معیشت ٹھیک ہو جاتی ہے تو پھر سیاست بھی ہو جائے گی اور باقی کام بھی ہو جائیں گے۔ تو میں سب کو کہوں گا کہ اگر آج کوئی اپنی سیاست چمکانے کی کوشش کرتا ہے اور سیاست میں، ملک کے خدمت میں کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، رکھنا ڈالتا ہے، تو قوم پھر ان کی نشاندہی کرے گی۔ لیکن میری کوئی اوقات نہیں ہے، اللہ کی توفیق ہے کہ ہم نے شدید بحران میں، جہاں پر 5.8 جو تھا وہ گروتھ ریٹ چھوڑ کے گئے تھے، اربوں کے منصوبے تھے، لوڈ شیڈنگ 0 تھی، 4.5 سال بعد آج اپنا جو ہے وہ الٹی گنگا بہہ رہی ہے، لوڈ شیڈنگ عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے۔ ہم کبھی بھی اپنا جو ہے نا وہ پچھلے ادوار کا رونا نہیں روئیں گے، لیکن قوم کے سامنے سچ ضرور رکھیں گے، کس نے کتنا جھوٹ بولا۔ آج اگر تیل کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں، تو اس وقت جب تیل کی قیمتوں کو سستا کرنے کا اعلان کر رہے تھے عمران نیازی، دوسری طرف ان کی ٹیم IMF کے آگے ہاتھ جوڑ کر تیل کی قیمتیں مہنگے کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے، قوم بھی جانتی ہے، 1 کروڑ نوکریاں ہوں، 50 لاکھ گھر ہوں، اپنا ریاست مدینہ ہو، نیا پاکستان ہو، یا تیل کی قیمتیں جو تھی وہ محض دھوکہ تھا، آج جو خمیازہ بھگت رہی وہ عمران نیازی کے ہاتھوں سے، دستخطوں سے، اس کی ٹیم کے جو IMF کے ساتھ جو معاہدے کیے، اس قوم کے اپنا معیشت کو رسیوں سے باندھا، پیر سے بھی اور اپنا ہاتھ کی بھی، اور آج ان رسیوں کو ہم کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود مجھے خوشی ہے کہ ان 3 مہینے میں آپ سب جانتے ہیں، میڈیا جانتا ہے، میں کوئی کہانی نہیں سناؤں گا عمران نیازی کی طرح، لیکن جن آئینی بحران کا پنجاب کو سامنا کرنا پڑا، شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں کہیں ایسا ہوا ہو کہ 2 مہینے ایک وزیر اعلیٰ جو ہے کابینہ کے بغیر ہے۔ میں نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں کابینہ کے بغیر ہوں، سیاسی بحرانوں کا سامنا ہے، تو مجھے تو اللہ کے فضل و کرم سے کوئی نہیں روک سکا۔ آٹا الحمدللہ ہم نے 10 کلو کا 160 روپیہ سستا کر کے
पूरे सूबे की आवाम के लिए मुहैया किया। मुझे तो कोई नहीं रोक सका। जो 4 साल आम आदमी को कैंसर तक की मुफ्त दवाइयों और आम दवाइयों से महरूम रख सका, मुझे तो अल्लाह के फजल व करम से कोई नहीं रोक सका। 36 अजला में आज जाके देखिए, पंजाब के तूलो अर्ज में THQ DHQ हॉस्पिटल में कैंसर की और आम दवाइयाँ जो है वो मुफ्त मिल रही हैं। हमने ये 100 यूनिट्स, तकरीबन पंजाब की आवाम की निस्फ आबादी 5.5 करोड़ लोग, ये किस मुंह से आवाम की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन पहुंच गए कि जी ये अपना जो है वो आवाम को इस क़यामत खेज महंगाई में सस्ती मुफ्त बिजली क्यों मुहैया की जा रही है, इसको रोका जाए। तो पंजाब की आवाम गवाह रहना कि मुफ्त बिजली देने वाले कौन थे और मुफ्त बिजली का हक छीनने वाले कौन हैं, जो आज इंकलाब का नारा लगा रहे हैं। 4 सालों में तो पाकिस्तान को कंगाल कर दिया। ये वही मईशत है, मैं दोबारा पूछूंगा आवाम से, जो 5.8% ग्रोथ रेट था जब मुस्लिम लीग नून छोड़ के गई, 0 लोड शेडिंग थी, आप सब गवाह हैं। तो कौम इन चीज़ों को सामने रखे जब 17 जुलाई को बाई इलेक्शन में वोट डालना जाए। सियासत की परवाह नहीं है हमजा शहबाज को, मुस्लिम लीग नून को अब सियासत की परवाह नहीं है। चाहते तो हम भी तमाशा देखते कि खुदा न खास्ता अगर ये एटमी कुव्वत जो है इसकी मईशत दिवालिया हो जाती। कड़वे फैसले किए जिसकी सियासी कीमत चुकाना पड़ती है, लेकिन ज़मीर मुतमईन है कि रियासत को, इस मुल्क को बचाने के लिए हमने कड़वे फैसले किए हैं। और इंशाअल्लाह इन सख्त फैसलों के बाद आवाम में आसानियों के लिए पैकेजेस भी दे रहे हैं और मईशत को भी इंशाअल्लाह ताला दोबारा से बहाल करेंगे। जिस तरह से लोड शेडिंग के अंधेरे को ख़त्म किया, थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन इस वक्त मुल्क की खिदमत कौन कर रहा है और सिर्फ मैं ना मानूं और अपनी इंतशार की सियासत को चमकाने के लिए कौन मैदान में है, इसका फैसला आवाम ने करना है। एक बात ज़रूर कहूँगा कि साफ चली शफाफ चली का नारा लगाने वाले ने आज तक तोशा खाने का हिसाब नहीं दिया कि भाई मैंने तोशा खाना से चोरी की हुई घड़ियां जो है मार्केट में जाकर बेच दी। और वो मुल्क, दोस्त मुल्क जिन्होंने तोहफे दिए, वो भी हैरान है कि ये कौन सा ऐसा आदमी है जिसको अपना परवाह नहीं है मुल्क की इज़्ज़त की, और इसने अपना जो है तोहफे में दी हुई घड़ियाँ बेच दी। ये नया पाकिस्तान है या फिर नया पाकिस्तान वो है जिसमें फरा गोगी और उसका खामद जो है एक सबसे कीमती तरीन प्लॉट पर अपना हाथ साफ करने की कोशिश करते हैं और अपना जो है वो अरबों रुपए पैसा कमाते हैं। रिश्वत के बाजार गर्म हैं। अभी फॉरेन फंडिंग का फैसला भी आएगा तो पता लग जाएगा कि मनी लॉन्ड्रिंग किसने की है। तो इमरान नियाज़ी साहब खुदा का खौफ करें, पहले अपने गिरेबान में झांकें और फिर कौम को भाषण दें। कौम हर तरह से आगाही रखती है, सियासी सूझबूझ रखती है। तो इंशाअल्लाह हम आपकी तमाम, अब देखें एहसन इकबाल के साथ क्या हुआ, कौन सी ऐसी अखलाकियात की तरगीब दी इमरान नियाज़ी ने कि राह जाते लोगों की इज़्ज़त उछाली जाए और लोगों को मजबूर किया जाए कि आप एक दूसरे के दस्तों गिरबां हो। इस सियासत का हमने तो कभी सुना नहीं। क्या इमरान की रियासत मदीना में खुदा न खास्ता अखलाकियात का इस तरह जनाजा निकाला जाता था? अगर क्या एहसन इकबाल के साथ हुआ है, क्या कल को जो कोई आएगा किसी की इज़्ज़त उछालने के लिए वो आगे से जवाब नहीं देगा? तो क्या फिर गली गली में अपना जो है चौराहों में एक दूसरे के साथ अपना जो है वो दस्तों गिरबां होगी नहीं? ये कौम तो पहले बिखरी हुई है, इसको जोड़ना है। ये कौम मुसीबतों में, महंगाई में घिरी हुई है, इसको बहाल करना है इस मईशत को। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानियत का जज्बा जो है वो सबके सीनों में जागना चाहिए और फिर अवाम की मर्जी है कि अवाम जिसका काम पसंद करें ना पसंद करें। तो ईद के दिन कम अज़ कम इमरान नियाज़ी को मैं ये पैगाम दूंगा कि खुदारा ये नफ़रत के बीज अवाम के अंदर इतने गहरे न कर दो कि लोग अपना जो है वो कोई सौदा ख़रीदने जाएं तो ख़वातीन जो है वो किसी मर्द का दामन नोचें। ये नफ़रतें जो है ना, ये खुदा न खासा इस मुआशरे का नासूर बन जाएंगी। हमें मुआशरे को जोड़ना है और ईद के दिन मैं यही पैगाम दूंगा कि ईद उस दिन होगी जिस दिन
गरीब अमीर सब जो हैं इस खुशी में शामिल होंगे। उसके लिए हमें सर जोड़कर मेहनत करनी होगी और पाकिस्तान की मईशत को बहाल करना होगा। सर ये बताइएगा कि श्रीलंका में हालात पोशीदा हो गए। कल पीटीआई का ये दावा है कि अगर जल्द इंतखाबात जनरल इलेक्शन नहीं करवाते तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान की भी यही सूरत जा रही है। आप क्या समझते हैं कि हालात वाकई इतने संजीदा हो चुके हैं या पीटीआई की? देखें, ये शख्स बनी गाला में बैठा है, इसकी अना के मसाइल हैं और कुछ दिमागी मसाइल भी हैं। जब ये बोलता है तो सोचता कम है, बोलता ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुल्क एटमी कुव्वत है। इमरान नियाज़ी की जो ख्वाहिशें हैं वो तो ये भी कहता है कि मुझे लगता है कि ये मुल्क का खुदा न खास्ता एटमी कुव्वत जो है ये तबाह हो जाएगी, फ़ौज तबाह हो जाएगी, इदारे तबाह हो जाएंगे। और भाई अगर तुम कुछ 4 साल में नहीं कर सके, आज इमरान नियाज़ी अपने सीने पे हाथ रख के सिर्फ मुझे एक काम बता दे 4 सालों में जिसने किया हो, एक काम उसको आता है, उसके लिए मैं उसको 100/100 नंबर दूंगा। वो झूठ बोलने का उसको जो आर्ट आता है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि ना ये इंशाल्लाह श्रीलंका बनेगा, ये मुल्क अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बना है। ये इंशाल्लाह कायद-ए-आज़म का खुशहाल पाकिस्तान बन के रहेगा और इसके लिए अवाम के साथ मिलकर जद्दोजहद करेंगे। और अगर किसी की नापाक ख्वाहिशात है कि मुझे आज इक़्तिदार नहीं मिला तो ये मुल्क खुदा न खासा श्रीलंका बन जाए, उसके अज़ाइम जो पाकिस्तान के जो इंतशार से भरे हुए हैं उनको पाकिस्तान की अवाम खाक में मिलाएंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि चौधरी परवेज़ इलाही का ये दावा है, बल्कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि जो आप कमिटमेंट करके आए थे सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन के हवाले से 17 जुलाई के, उसका आप मुनहरिफ हो रहे हैं और आज भी आप रियासती मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं अपने इलेक्शन में धांधली के लिए। किस हद तक ये दुरुस्त है? उन्होंने तो ये भी कहा था कि मेरा बाजू तोड़ दिया और हमजा शहबाज ने सरिया मेरे सर पे मारा और मैं बेहोश हो गया। आपके कैमरे देख रहे थे, मुझे उठा के बाहर फेंक दिया। वो जब ख्वाब टूटा तो उन्होंने कहा कि चौधरी साहब आप पहले कौम को ये बताएं कि ऐसा कौन सा बाजू है जो 77 साल की उम्र में एक दिन टूटता है अगले दिन जुड़ जाता है। तो मुझे वो पायोडीन भी बता दें चौधरी साहब। तो मैं ऐसे लोगों की बातों का ना बुरा मनाता हूँ, मैं उनसे भी यही कहता हूँ कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। जो शख्स अपना जो है वो आइन और कानून के साथ खिलवाड़ करे, असेंबली का इजलास बुलाकर अपनी मौजूदगी में गुंडों से ख़वातीन की पिटाई करवाए और उनको शाबाश करे कि आपने नहीं देखा, तो उससे क्या तवक्को करनी। इंशाअल्लाह 17 जुलाई को अवाम अपने फ़ैसले से तमाम चीज़ों का अपना जो है ना वो फ़ैसला करेंगे और हम एक पूरी कुव्वत से अवाम की खिदमत करेंगे। बहुत शुक्रिया।